السلام ہلو، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی، بس کرم نوازش ہے۔ حضرت صاحب کچھ فیضیاب کروائیں کچھ مسائل سے، جی کچھ مسائل سے فیضیاب کریں، عوام کو، ملت کو فیضیاب کریں۔ جی 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 فرمائیں۔ جیسے نکاح ہو رہا ہے، نکاح میں نکاح پڑھانے والا سنی ہے، بریلوی ہے، ہاں ہاں، اور لڑکی بھی بریلوی اور لڑکا بھی بریلوی ہے، لیکن گواہ وکیل جو وہابی بن گئے، ہاں، تو نکاح ہو جائے گا؟ گواہ وکیل وہابی ہو، نہیں 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 ہوگا، نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ آ گیا۔ اب یہ تو گواہ ایسے جیسے ٹوک راجستھان میں سب وہی ہیں زیادہ تر۔ نہیں تو معاملہ علامہ سعد الدین قبطانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب سرح قائد نصری میں لکھا ہے جی کہ کن لوگ الناس مومن عند اللہ کافر، جی، کہ لوگوں کے نزدیک تو مومن ہوں گے، اللہ کے نزدیک کافر ہوں گے، ہاں 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 اور کچھ لوگ اللہ کے نزدیک مومن ہوں گے، لوگوں کے نزدیک کافر ہوں گے۔ ہاں ہاں۔ اور شریعت میں طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے دیوبند والوں کو گواہ وکیل نہیں بنا سکتے؟ کوئی سنی جماعت کا بھی ہو اور وہ فاسق ہو تو فاسق کی گواہی مردود الشہادہ ہے۔ ہاں یہ بات، تو جب فاسق کی گواہی مردود الشہادہ ہے تو جو گستاخ رسول ہے اس کی گواہی کہاں سے اسلام میں قبول ہوگی؟ یہ تو بڑا معاملہ وہاں مسئلہ۔ دیوبندی کا نہیں ہے، معاملہ گستاخی رسول کا ہے کہ اگر وہ سب گستاخ رسول نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل، وہ تو دیوبند معاملہ لفظ دیوبندی کا وہابی کا نہیں ہے۔ معاملہ جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کی گواہی، ان کا ایمان، ان کی عبادت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص امامت کر رہا تھا حضور کے دور میں، جی، اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا، ہاں ہاں سرکار کو اطلاع ملی، سرکار نے اسے معذور قرار دیا، ہاں کہا کہ جو ہے وہ سب ثابت ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے معذور کر رہا ہے کیا؟ ہاں، ہاں کہ کیوں؟ کہ جس سب کو کعبے کی عظمت خیال نہیں وہ سب سے امامت کے قابل نہیں۔ اچھا، تو بتائیے صرف تھوکنے کی وجہ سے معذور قرار دینا؟ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ تو اب معاملہ آج کے زمانے میں کیا ہے، لوگ طبیعت والی بات ہے، طبیعت والی بات ہے۔ ہاں اب اب معاملہ وہ کیا ہے کہ ایک صاحب تنظیم چلاتے ہیں تحریک، یہی تبلیغی تحریک، تو ان کے آدمی نے بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ امیر صاحب کو میرا سلام پہنچا دینا، تو یہ کہنا تو کفر ہے صاحب؟ ٹی وی سے؟ ٹی وی سے، ہاں ہاں، یہ بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ امیر صاحب جو جماعت کے امیر ہیں، اس جماعت کے دعوت اسلامی کے، ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ارے اصل بات کیا ہے، دعوت اسلامی کا کچھ کام تو بہرحال ٹھیک ہے لیکن کچھ کام بہت گڑبڑ ہے، ہاں بہت خاص کر گڑبڑ۔ دیدار امیر علیہ سنت، یہ فلاں فلاں۔ دیکھیے ہاں ہاں مبالغہ آرائی ہاں حقیقت پر مبنی ہے تو ٹھیک ہے، اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اور بالکل میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار وہی چیزیں بیان کرو جو حقیقت سے اور ذہن و فکر میں آنے والی چیز ہو۔ ہاں بالکل بالکل، یہ تو اپنے بال کو بال مبارک دے کے بڑھوا چکا، اپنا یہ میلاد لوگ نامہ اصل بات پڑھوا دعوت چکا۔ اسلامی کے کچھ کام مجھے بڑا برا لگتا ہے کیا کہ یہ لوگ ممبر پہ لے جا کر کے لیپ ٹاپ رکھ دیتے ہیں، ہاں ممبر دیدار پر، امیر علیہ سنت مسجد کے اندر، مسجدوں کے اندر، ارے یہ سب چیزیں تھوڑا سا کچھ غلط ہے نا۔ ارے بھائی اظہری آپ میر صاحب نے بھی رد سنت کیا کی تھا اس دعوت دے بات رہے کا، ہو تو یہ کون سی سنت ہے؟ نہیں اظہری میر صاحب نے بھی رد کیا اس بات کا کہ یہ لوگ مسجدوں میں بھی لیپ ٹاپ چلاتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں یہ کہا الیاس قاضی نے کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ یہ کہ اس نے الیاس قاضی نے کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ ہاں، تب بتا، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے جوڑ کے بتا رہا ہے الیاس قاضی۔ اب وہ معاملہ اس بات کا ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کی جو بات ہے، جی سرکار حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ ایک صحابی کی عظمت کیا ہے، ہاں مقام کیا ہے، ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جو دھول اٹھتے ہیں وہ بھی میرا مقام نہیں۔ اللہ اکبر، بتائیے۔ اور یہ اس میں بدتمیزی کر رہا ہے الیاس قاضی، کہہ رہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں، تو صحابہ کرام کو مجدد ہونے کی کیا ارے ضرورت تھی؟ بھائی مجدد تو چھوڑیے، صحابی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہاں، صحابہ کے سامنے مجدد کا کیا مرتبہ ہے صاحب ہے؟ مجدد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور صحابی ہونا خود بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں حضرت کے، اللہ حفاظ فرمائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، مدینہ شریف کا مذاق بنایا، سلام کا مذاق بنایا،
आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम। अब बताइए कोई सलाम होता है सर? तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, और इतने मीठे मीठे रसूल कहलवाया साहब, ये जायज है क्या मीठे रसूल कहना? हाँ है? नहीं, असल बात क्या है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो होता क्या है कि जैसे मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और कहीं भूल हो गई, आपने लुकमा दे दिया और मैंने सही अगर मुझसे भूल हुई है, सह हुआ है, तो हमें वो लुकमा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये लोग क्या है, लुकमा ही नहीं लेते और एकदम रंग बदल देते साहब। पहले आलिमों को साथ रखते थे, बाद में आलिमों को अलग कर दिया लोगों ने। हाँ, तो वहीं से ये कमजोर भी हो गए ना। अब इसमें फैजान सुन्नत में लिखा है सफाई 31 में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है इलियास काजी। उसके बावजूद जो अजहरिया के मुरीद हैं वो बिल्कुल ढील पोल कर रहे हैं इसके बारे में। ये कोटा में एक वो है इदरीस साजी जड़ा कोटा में, वो इसका बड़ा हिमायती है, ये मौलवी इदरीस कोटा में है। तो अजहरिया के मुरीद भी साहब ढीले पड़ गए। अरे क्या कहा जाए, बस शायद ने कहा कि कदम आहिस्ता में खाने में रखना, हजारों दास्तानें सो रही हैं। हजारों दास्तानें सो रही। अब ये अशरफिया वाले इसकी फुल तारीफ करते हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन और मुफ्ती बद्र आलम। हाँ, अब बताओ साहब, ये भी सुलह हो चुके साहब, ऐसा लगता। अरे वो क्या कहा जाए, जो कुछ भी है। सलाकुल्ली है साहब, सलाकुल्ली है, मेरे तो सलाकुल्ली कह रहे हैं। अरे क्या कहा जाए, क्योंकि अब जब अदलिया का फतवा नहीं मान रहा है इलियास काजी, ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब तो सैयद सराबा भी गए थे साहब देवबंदियों के यहाँ। अब वो क्या कहा जाए, भाई सैयद सराबा गए थे ना साहब, ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब तौबा नहीं की, न कलमा पढ़ा इन्होंने। क्या कहता हूँ मैं, बड़े मसले हैं साहब। अब क्या कहा जाए, मसले ही तो मसले हैं। तो हजरत ये बताइए कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का निकाह होगा कि नहीं होगा? वहाँ तो सब वहाबी गवाह बनेंगे। जैसे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो लोग रहते हैं साहबा किराम की औलाद और सैयद रजा, तो उनका निकाह होगा कि नहीं होगा? वहाँ तो कोई रज़ी है नहीं, कोई हशमती है नहीं, सब वहाबियों का वहाँ निकाह होगा कि नहीं होगा? नहीं, मामला सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर किसी शख्स के बारे में अगर हमें ये पता है कि ये गुस्ताखे रसूल है, अब ऐसे किसके बारे में नहीं, तो इसीलिए क्या है कि जो लोग मक्का मदीना में निकाह खानी के लिए जाते हैं, इस तरह कोई चीज है तो उसको चाहिए कि पहले से चीज तय कर ले। नहीं, ये इलियास काजी के मुफ्ती के हिसाब से उनका निकाह नहीं हो रहा, बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है मक्का शरीफ मदीना। इसमें मुफ्ती मुशाहिद हुसैन ने ऐसा कह दिया है, और ये मुफ्ती समर अख्तारी है ना, और इलियास काजी ने भी कि जो आजाद को न माने हम उसको नहीं मानेंगे, यानी मुसलमान नहीं मानेंगे। तो अब वो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले फिर तो मुसलमान ही नहीं है इलियास काजी के हिसाब से, और ये मुफ्ती समर नहीं मामला, अरे भाई आला हजरत को माने ना माने, लेकिन हुजूर को मानने के तरीके से माने न। हमारे तो नहीं, इलियास काजी ने कह दिया कि जो आला हजरत को न माने तो अपन, अब वो मुसलमान नहीं, मतलब ये कि उसने कहा अपन नहीं, सब बेकार की बात है। वो खुद जो है कि जाने क्या क्या हरकतें कर रहा है, टीवी को जायज बता रहा है, हालात के खिलाफ काम कर रहा है। अरे ये सब फालतू बातें बोल करके तो लोग और ज्यादा मसले खड़े कर दे रहे हैं। ये फालतू बातें बोल करके तो लोग मसले खड़े। अभी मुफ्ती आलम एशिया को एक काफिर करार दे रहे हैं दावत इस्लामी वाले, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। किनको? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है ना, मुफ्ती आलम एशिया। अच्छा। उनको दरअसल देवबंद वालों से मिलने के ऊपर काफिर करार दे रहे हैं। ये सब देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं, ये फतवे से ज्यादा तकवे पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अब ये मुफ्ती आलम एशिया साहब एक मायने रखते हैं मुनीबुर रहमान साहब, उनको काफिर करार देना दावत इस्लामी वाले। अरे क्या कहा जाए, खुद जो है कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ के आया इलियास काजी, कह रहा था मुहद्दिस कबीर साहब से कहा कि हाँ मैं पहले पढ़ता था। इलियास काजी, हजरत साहब इलियास काजी ने खुद इमाम हरम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, काफी पढ़ी हैं। और बाद में कह रहा मैं नहीं पढ़ता, मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना कर दिया था मैं नहीं पढ़ता। पहले तो खूब पढ़ी इसने, ना निकाह किया ना तौबा की। चलिए क्या है, तो साहब इनके फतवे कैसे हैं साहब, इनके अत्तारियों के? अब क्या कहा जाए, अब इन लोगों ने तो ऐसी ऐसी गुस्ताखियां लिखी किताबों में फैजान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है।
اور सफर 27 ने कहा जो भी इसके इज्तिमा में गया लाडी में सबकी बख्शिश हो गई। एक आदमी उठ के आ गया, उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नादान, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं, जो इलियास काजी के इज्तिमा में जा रहा है उसकी बख्शिश हो गई। ये सफर 27 में लिखा, फिलहाल सुन्नत में लिखा। और साहब क्या कहा जाए, इसने तो इंतहा कर दिया। मुफ्ती मुशाहिद मुनीबुर रहमान को काफिर करार दिलवा रहा है इलियास काजी साहब अपने मुफ्तियों के जरिए। वो मुशाहिद हुसैन है इसका। और इससे पहले अहमद नूरानी साहब जो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के थे ना, उनको भी यही, इनके लोगों ने उनके खिलाफ भी काम किया है। ये इनके बरादरों ने दाऊद इस्लामी के उसी से मिलते जुलते काम में वो भी गए थे। मजलिस मुत्तहिदा अमल थी ना उसमें, देवबंद वाले भी थे उसमें। तो ऐसे कोई जाने से काफिर थोड़ी होता था। जब तक कि अकीदा न बदल जाए या कोई आदमी ऐसा काम न करे कुफरिया काम, ऐसे खाली मस्जिद में जाने से क्या देवबंद वालों की मस्जिद में जाने से काफिर हो जाएगा साहब। ऐसे जामे अज़हर लोग जाते हैं, जामे अज़हर में कौन से मसलक के लोग हैं वहाँ, तो सबको मुसलमान मानते जामे अज़हर वाले साहब। आपको तो पता होगा साहब, जामे अज़हर वाले देवबंदी बरेलवी अहलदी सबको मुसलमान मानते हैं। अगर साहब क्या जामे अज़हर वालों को क्या माना जाए, सुलकुल्ली माना जाए या देवबंदी माना जाए साहब? असल जब तक किसी के अकीदे के बारे में पूरे तौर पे इल्म ना हो, ये बात सही है, उसके बारे में कोई वैसा फतवा जारी नहीं किया जाता। इसलिए मैंने हजरत ये कह दिया था कि इमाम हरम के पीछे नमाज हो जाएगी, जो पढ़ना चाहे जमात से पढ़ ले और जो नहीं पढ़े उसकी मर्जी। मैंने कह दिया हजरत, ये कोई गुनाहगार तो नहीं हुआ ना? मैं नहीं, मैंने कह दिया नमाज हो जाएगी जो पढ़ ले इमाम हरम के पीछे। सही कहा। मसाइल जो इसलिए उलझाए हुए हैं जी कि मैंने आपको बताया ना कि मैं नमाज पढ़ा रहा था, कोई कमी हो गई, आपने लुकमा दे दिया और लुकमा सही है तो हमें वो लुकमा लेना चाहिए। आज के जमाने में क्या है, हम चू डिग्री निस्त वाला मामला है। हाँ बिल्कुल सही फरमाया। समझे कि कोई किसी को मानने को राजी नहीं है। बिल्कुल। तनकीद अगर बराए तफसील हो रही है तो हमें इसमें सब करना चाहिए। मिसाल के तौर में एक तंजीम जी जी कमी महसूस हो रही है, तो आपने वो कमी महसूस की, बताई कि ये कमी महसूस हो रही है, आप उसकी इस्लाह कर ले। और हमको समझ में आ रहा है कि यकीनन ये कमी है जी, तो हमें उसकी इस्लाह जरूर करनी चाहिए। अगर आदमी इस्लाह करने पे अगर आएगा आदमी तो हदीस रसूल है कि मन आरफा नफ्सहू फक़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, उसने ही अपने रब को पहचाना। हाँ, जिसने अपने आप को पहचाना मतलब। तो अब क्या है कि पर तवज्जो नहीं देते हैं तो क्या कर रहे हैं। तो हजरत मैंने ये कह दिया था कि इमाम हरम के पीछे नमाज हो जाएगी, तो इसमें कोई मैं गुनाहगार तो नहीं हूँ ना? हजरत मैंने कह दिया हो जाएगी नमाज, जमात से पढ़ लिया करें। नहीं करना चाहिए इस चीज है, इसराफ करना चाहिए। मतलब ये है कि वो आपने कहा ना कि अपन को जब तक मालूम नहीं हो तो कैसे काफिर के। तो मैंने मतलब उनके देखिए सऊदी अरबिया की जो हुकूमत है उनके अकायद और उनके उसूल जो भी हैं, एक किताब जो अलाउद्दीन ने लिखी थी दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया, तो उसमें उनके अकायद और नजरियात जो है वो गुस्ताखी पर मबनी है। और वो उन्हीं से फतवा लेके आए, उन्हीं से हजरत फतवा लेके आए, फतावा उसामुल हरमैन, उन्हीं से फतवा लेके आए, उन्हीं के खिलाफ किताब लिख दी क्या हजरत? जैसे फतावा उसामुल हरमैन तो वहीं से लाए ना। अब बताओ, ऐसे लोगों से फतवा ही नहीं लाना था हजरत को उसामुल हरमैन। अरे वो तो ऐसे ही चल रहा है मामला साहब, तजाद भरा मामला चल रहा है, तारुज और तजाद पाया जाता है। क्या कहा जाए, आदमी जो है ये बहुत अच्छी बात की हजरत। एक मौलवी साहब ने तो ये बता दिया कब्र में शैतान आता बेकाने हजरत मरने के बाद। क्या है, ऐसा कहीं रिवायत है कब्र में शैतान आता बेकाने? ऐसा तो नहीं कुछ मामला है। ये इलियास काजी के मानने वाले मानते हैं कि कब्र में शैतान आता बेकाने मरने के बाद। मैंने रद्द कर दिया कि कब्र में कोई काम नहीं है, मरने के बाद कोई काम नहीं है शैतान का। तो हजरत सही है ना साहब, मरने के बाद थोड़ी कोई काम है शैतान का। अब ऐसी कोई रवायत तो नहीं सामने सुनी कि कब्र में शैतान आता है। हाँ, ये लोग जने काका की बना के ले आते हैं हजरत साहब, कमजोर रिवायतों से साबित कर देते हैं। आपने तो कभी नहीं पढ़ी ना हजरत ऐसी रिवायत कब्र में शैतान आता है? मजहूल रवायत नहीं पेश करनी चाहिए। हाँ, मजहूल। तो ये ये कब्र में शैतान आने के बारे में सही रिवायत तो नहीं ना कोई?
नहीं है ना बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में? नहीं है। हाँ, ये लोग ये जने काका कि ये भी साजी दड़ा वाला भी यही मानता है, कोटा वाला। इसने तो ये कहा था मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी जमात से, वहाँ पर क्या कह रहे हैं हज करने गया था, और ये कह रहा था मैंने होटल में जुमा पढ़ लिया था। होटल में हजरत जुमा कायम हो जाएगा क्या? होटल में जुमा पढ़ सकते हैं क्या? होटल में? हाँ, नमाज पढ़ सकते हैं होटल में जुमा नहीं, जुमे की नमाज होटल में कैसे हो जाएगी? जुमे के लिए मस्जिद शर्त नहीं है। नहीं, जैसे कहीं भी जुमा कैसे कायम कर लेंगे हजरत? होटल में या दरिया में या हवाई जहाज में? अगर ऐसी सूरत है जहाँ पर, तो वहाँ पर जुमे के बजाय आदमी जोहर की नमाज पढ़ ले। जोहर की नमाज पढ़े, जुमा थोड़ी होगा साहब होटल में। हाँ, तो उसने ये वैसे भी मुसाफिर के ऊपर जुमा फर्ज नहीं है। तो अब ये दावत इस्लामी वालों का फतवा माना जाए कि नहीं कि अरब में कोई भी मुसलमान नहीं, जैसे अगर दावत इस्लामी वाले कहें कि अरब में कोई भी मोमिन नहीं है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो सबको ही कह रहे हैं उनका निकाह नहीं होता इनके फतवे से, दावत इस्लामी वालों के फतवे से निकाह नहीं हो रहा अरब वालों का, मक्के शरीफ मदीने वालों का, क्योंकि वो आलात का मानने वाला गवाह नहीं है। तो ये दावत इस्लामी वाले उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। अब इलियास काजी कह दिए जो आलत को नहीं मानेगा हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे, मतलब हम उसको नहीं मानेंगे यानी मुसलमान नहीं मानेगा, तनाज़ुर पैदा होता है। तो अब बताओ, ये इलियास काजी खुद तो जाहिल है, न आलिम है, न फाजिल है, और वल्लाह व रसूल आलम लिखवाता है फतवे में। आपका मैं नंबर जो है सेव तो किया था, आप सेव कर लेना। तो मौलाना फहीम साहब बोल रहे हैं क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, माशाल्लाह। आप पहचान गए क्या हजरत काजी बोला? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। आपने तो माशाल्लाह आप पढ़ा रहे हैं ना वहीं पर साहब, आप जामिया इस्लामिया में पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, रूनाई में पढ़ा रहे हैं ना हजरत आप? हाँ, वही तो। आप कौन से आलिमों को पढ़ाते हैं? फजीलत वालों को के साबिया वालों को? सभी को पढ़ाते हैं। सभी को, फजीलत वालों को भी। तो अगर मैं ये बता दूं कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का जो सैयद हजरात हैं उनका निकाह हो जाता है, वहाँ के गवाह बन जाए जब भी निकाह हो जाएगा। दावत इस्लामी वालों का फतवा गलत है। ये लोग ये मानते हैं कि मतलब जब तक हालत का मानने वाला नहीं होगा तो वो उसका निकाह भी नहीं होगा, वो मुसलमान भी नहीं है। मामला आला हज़रत के मानने ना मानने का नहीं। नहीं, ये दावत इस्लामी वाले हालात को ज्यादा फॉलो यूँ कर रहे हैं कि हम लोगों को लोग सुन्नी मान लें। वैसे तो ये वहाबी लोग हैं, वहाबी किस्म के लोग हैं, ये वहाबी से भी मिल लेते हैं, चंदा लेते हैं, वहाबी किस्म के लोग हैं ये दावत इस्लामी वाले। सुनिए, आला हजरत का जो मामला है, आला हजरत को मानना ना मानना कोई जुज़वी ईमान थोड़ी है। हाँ, तो ये इलियास ज्यादा प्रचार हालात का यूँ कर रहा है कि लोग मुझे कट्टर सुन्नी मान लें। अरे ये सब चीजें कट्टर कुछ नहीं रखा है। ये ढोंग कर रहा है, ढोंग करने के लिए सब कर रहा है कि लोग मुझे बहुत बड़ा आशिक रसूल माने और आला हजरत का मानने वाला माने। ये सब फालतू बातें हैं, सब चुप मार के काम करना चाहिए आदमी को। मुझसे वो कुरान हदीस का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्लियर कह रहा है कि जो आलात ने लिखा वही माना जाएगा, बस क्लियर कर रहा। तो सिर्फ अल्लाह रसूल यानी अल्लाह रसूल का हवाला ही नहीं दे रहा इलियास कादी उसके दावत इस्लामी। जो कुछ भी लिखा है वो इसके रसूल में ही तो लिखा है, उससे क्या वो तो लिखा तो है, लेकिन अल्लाह रसूल का तो हवाला देना चाहिए कुरान और हदीस का। वो तो सिर्फ आला हजरत आला कर रहा है इलियास कादी। और अजहरी मियां ने इसके खिलाफ फतवा दिया, सख्त कहा है कि ये मुबल्लिग नहीं है दावत इस्लामी वाले, ये मसलक आलत की मुबल्लिग नहीं है। ये तो अभी ज्यादा करने लगा है ये आला हजरत। इस वक्त सुनिए, इस वक्त मामला देखिए ईमान और कुफ्र का है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुफ्ती आजम एशिया को जो इन्होंने काफिर करार दे रहा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, मैंने इसका रद्द कर दिया है मुशाहिद का और गफरान सियालवी का। ये बिला वजह काफिर करार दे रहा है साहब। देवबंद वालों की मस्जिद में चले गए थे मुनीबुर रहमान साहब, इतनी सी बात पे काफिर करार दे रहा है। अब इन्हें क्या मालूम वो कौन इमाम है, क्या है, किस कंडीशन का आदमी है, हर एक को थोड़ी काफिर समझा जाएगा साहब। और ऐसे तो लोग जामे अजहर मिस्र जाते हैं, और इसके आदमी ने मुशाहिद हुसैन जो दावत इस्लामी वाला है उसने उसके फतवे से तमाम अरब की मस्जिदें ज़िरार के हुक्म में आ गई, कि कह रहा है कि आलात में लिखा है कि इनकी मस्जिदें ज़िरार के हुक्म में। क्या साहब ऐसा है कि अरब की सारी मस्जिदें ज़िरार हैं? नहीं, ये तो कैसे फतवे दे रहा है दावत इस्लामी वाले साले हैं। ये तो साहब कुरान में लिखे हैं मस्जिद दरारों कुफरों, ये मस्जिद ज़िरार से ताबीर कर रहा है देवबंद वालों की मस्जिदों को, और अरब की जितनी भी मस्जिदें सब मस्जिद ज़िरार के हुक्म में, ये साफ साफ कह रहा है। चलिए वहाँ फहीम साहब खाना खा लो फिर इंशाल्लाह। अच्छा साहब ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी। अतर काजी बोला था। सलाम अलैकुम।